to the galaxy of electrical engineering. So we have started electrical machine MCQ series, and in previous videos we have discussed 20 questions related to the transformer MCQs. So I hope you are liking this series, and this is the third part of transformer MCQs. So if you are new to my channel, please subscribe it, and we have one Telegram group as well, so you can join that. I'll provide the link in the comment section. So without a further ado, let's begin with the video. So our first question is, if in a transformer PC represents core loss and PSC represents full load ohmic loss, the maximum kVA delivered to the load at maximum efficiency is equal to rated kVA multiplied by dash. So what we have been given in this question, that we have two different losses, right? First one is variable loss and second one is constant loss. So transformer का constant loss कौन सा होता है? It is nothing but core loss. और जो variable loss होता है, it is nothing but ohmic loss. ठीक है. So maximum kVA जो deliver होने वाला है load को at maximum efficiency is equal to the rated kVA value and is multiplied by certain factor. So वो factor हमें find out करना है. ठीक है. So we have certain information regarding the condition for the maximum efficiency. So maximum efficiency आपको कब मिलेगा? When you will differentiate efficiency term with respect to x and I2. ठीक है, जब आप इसे differentiate करोगे and when you will equalize with 0, then you are going to get the condition for the maximum efficiency. You are going to get a point where the maximum efficiency occurs. ठीक है. So as you can see here, we have efficiency x of full load is equals to this. So ये term कैसे आया? There is one equation for efficiency. उसे adjustment करके ये term आता है. ठीक है. So I am going to write that value. So what is the value? It is nothing but efficiency at x of full load is equals to x E2 I2 cos phi 2 whole divided by x E2 I2 cos phi 2 plus wi plus x square I2 square R02. This is the value of efficiency at x of full load. So ये जो आप न्यूमरेटर वैल्यू देख रहे हैं, इस टर्म को लेके आपको दोनों भी साइड में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भी साइड में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा ताकि आप इस इक्वेशन तक आ सके. ठीक है. सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द न्यूमरेटर वैल्यू, देन यू आर गोइंग टू गेट दिस इक्वेशन. ठीक है, आपको इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 को एडजस्टमेंट करके आपको इक्वेशन नंबर 2 मिलता है. ठीक है. सो द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर डिपेंड्स ऑन लॉसेस टू आउटपुट पावर रेशियो. सो लॉसेस टू आउटपुट पावर रेशियो पे डिपेंड करता है हमारा ट्रांसफॉर्मर इफिशियंसी. ठीक है. इफिशियंसी इज गोइंग टू बी मैक्सिमम वेयर द लॉसेस टू द आउटपुट ratio is minimum. So I am going to draw here one graph, losses to the output power. ठीक है. And the graph is like this. ठीक है. So यहाँ आप देख सकते हो, you are going to get minimum value here. ठीक है. इस पॉइंट पे आपको minimum value मिल रहा है. So जहाँ आपको minimum value मिले, there you are going to get the maximum value of efficiency. So at this point you are going to get minimum losses to the output power. So इस point पे आपको minimum losses to the output power मिल रहा है. So यही point होगा where you are going to get the maximum efficiency of transformer. ठीक है. So that's why in this statement it is to be said that the efficiency of transformer depends on losses to the output power ratio. क्यों? जिस पॉइंट पे आपको कम लॉसेस टू द आउटपुट पावर मिल रहा है, वही पॉइंट होने वाला है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर का. ठीक है. द लॉसेस टू द आउटपुट रेशियो इज मिनिमम ओनली व्हेन
this term is equals to this term. That means this is the variable loss and this is the constant loss, right? So when the variable loss is equals to constant loss, at that point only you are going to get maximum value, because that is the point where the minimum losses to the output power ratio you get. Okay? The maximum efficiency in the transformer will be obtained only when the copper loss is equals to iron loss. Okay? When the variable loss is equals to the constant loss, at that point only you are going to get the maximum efficiency in the transformer. Okay? So ये है copper loss and this is the iron loss. So इन दोनों को आपको equalize करना होगा, and after equalizing that you are going to get a point which is nothing but x is equals to under root wi divided by I2 square R02. So this is the point where you get the maximum efficiency. ठीक है. So next one is the fraction x of corresponding to the maximum efficiency. So जिस point पे आपको maximum efficiency मिल रहा है उसका fraction, that means x value क्या निकल के आ रहा है? It is nothing but under root of iron loss to the full load copper loss. ठीक है. Then the load kVA corresponds to the maximum efficiency of transformer. So जिस point पे आपको maximum efficiency मिल रहा है transformer का, so load kVA उस point पे क्या होना चाहिए? How we can be able to calculate that? We can be able to calculate through the fraction x into full load kVA value. ठीक है? So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now moving back to our question. So the load kVA at maximum efficiency is equals to, I'll just write here that load kVA at maximum efficiency is equals to, what we are going to get? We are going to get kVA at full load into, कौन सा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आने वाला है? इट इज नथिंग बट पी सी बाय पी एस सी. ठीक है. सो दिस इज द वैल्यू एंड पी सी रिप्रेजेंट्स कोर लॉस एंड पी एस सी रिप्रेजेंट्स फुल लोड कॉपर लॉस. ठीक है. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. सो ऑप्शन नंबर सी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. Now, moving towards our next question. So, our question is, for a single phase transformer, RE is equals to total equivalent resistor, XE is equals to total equivalent leakage reactance, PC is equals to core loss, the load current at which the maximum efficiency occur is dash. So, we have already discussed about it. So, what we have to do here, we have to find out कि कौन से लोड करंट पे हमें मैक्सिमम इफिशियंसी मिल रहा है. ठीक है. सो द लोड करंट एट विच द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑकर इज I square RE is equals to P core. That means PC, right? So what we have to find out? We have to find out the load current value. So I square is equals to PC by RE. Here small दिया गया है, so I'll just write here small. ठीक है. So I is equals to under root PC divided by RE. So कौन सा correct answer है? So the correct answer is option number A. So option number A is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now moving towards our next question. So the question is, the maximum efficiency for a transformer occurs at 80% of full load. Its core loss is PC and ohmic loss is POH. For the transformer, the ratio of PC divided by POH is dash. So इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है that the maximum efficiency is occurring at 80% of full load, then its core loss is PC. और ohmic loss कितना दिया गया है? POH. So we have to find out the ratio of core loss to the ohmic loss at the maximum efficiency 80% of full load. ठीक है. So for maximum efficiency condition के लिए we have fraction value x is equals to
under root P core divided by P ohmic. P ohmic, right? So this is for the maximum efficiency. हम maximum efficiency के लिए find out कर रहे हैं, ठीक है? For maximum efficiency, the fraction value x is equals to under root P core by P ohmic. So जो fraction value दिया गया है, कितना दिया गया है? It is nothing but 80% of the full load. ठीक है, 80% दिया गया है, so I can write here 80%, that means 0.8. So 0.8 whole square is equals to P core divided by P ohmic, right? P core divided by P ohmic. So जो आंसर आता है इसका, it is nothing but 0.64. So P core divided by P ohmic का वैल्यू कितना निकल के आया है? It is nothing but 0.64. So जो correct answer है, that is nothing but option number C. So option number C is only correct answer for this. I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now moving towards our next question. Our next question is, when compared with the power transformer, a distribution transformer has dash. So options are low percentage impedance and high I square R loss to the core loss ratio. High percentage impedance and high I square R loss to the core loss ratio. High percentage impedance and low I square R loss to the core loss ratio. And low percentage impedance and low I square R loss to the core loss ratio. ठीक है. So what we have been given in this question, that we have a distribution transformer, and when we are comparing distribution transformer with the power transformer, then what is going to be the changes in its percentage impedance and also the ratio of I square R loss to the core loss, that we need to know in this question, right? So as you all know that distribution transformer has Z value because we have to minimize the voltage drop. So for distribution transformer, the value of impedance, that means Z, is small. So why it is small? Because we have to minimize the voltage drop. So in order to minimize voltage drop, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप को मिनिमाइज करने के लिए Z का वैल्यू स्मॉल होता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर. इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर the core loss is going to take place throughout 24 hours. So throughout 24 hours के लिए core losses present होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में. But in case of copper loss, throughout 24 hours के लिए copper loss present नहीं होता है because it is based on the load cycle of consumer. So core loss को हम minimize कर सकते हैं with the load cycle, but हम iron loss को minimize नहीं कर सकते हैं because it is taking place throughout. So at the time of designing of distribution transformer, we have to decrease the value of core loss as compared to the copper loss. ठीक है. So if I have to write here that core loss is taking place throughout for 24 hours, core loss is present for 24 hours, but copper loss is present based on the load cycle. So copper loss is present based on load cycle, based on load cycle. ठीक है. So we have to minimize core loss. core loss को हमें minimize करना है during the design. ठीक है. जब हम minimize करेंगे, then what is going to be the ratio? So I square R by core loss. So core loss को हमें क्या करना है? core loss को हमें minimize करना है. ठीक है. core loss को हमें minimize करना है, and copper loss will be more as compared to the core loss because designing process में ही हमने core loss को decrease कर दिया. So as compared to the core loss, there is going to be certain increment in the copper loss. ठीक है. So what is going to be the value? Denominator decrease हो रहा है, that means overall ये term increase हो जाएगा. That means you are going to get the high value of the ratio of I square R loss to the
कोर लॉस। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वी हैव बीन आस्क्ड कि इम्पिडेंस में क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो इम्पिडेंस इज स्मॉल इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर एंड वी आर गोइंग टू गेट high value of ratio of I square R loss to the core loss. So it is in option number A. So option number A is only correct answer for this. So moving towards next question. The question is a transformer maximum efficiency for a constant load current occurs at dash. So options are at any power factor, at zero power factor leading, at zero power factor lagging and unity power factor. So जो मैक्सिमम इफिशियंसी होता है फॉर कांस्टेंट लोड करंट, ये कौन से पावर फैक्टर पे ऑकर होता है, इट इज ऑकरिंग एट यूनिटी पावर फैक्टर ओनली. So for maximum efficiency we are going to get one equation. So whenever there is maximum efficiency of transformer, P core is equals to P copper. So I'll just write here, for maximum efficiency what is the condition of losses. So core loss is equals to copper loss. ठीक है, core loss is equals to copper loss. So I'll just draw here one graph so that you can be able to get कि किस point पे हमें maximum efficiency मिल रहा है. ठीक है, so this is the point of maximum efficiency and this is the point of 98% of maximum efficiency. This is maximum efficiency. ठीक है, and this is the point where we get both the losses equal. So इस point पे आपको P core is equals to P copper मिल जाएगा. ठीक है, और इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे देन यू आर गोइंग टू गेट P core is greater than P copper. बट आप अगर राइट हैंड साइड में जाओगे तो आपको मिलेगा P copper is greater than P core value. ठीक है, so this is nothing but the graph of maximum efficiency with respect to the load current. ठीक है, XI2. So what we have to do here, we have to write here the point, that means the fraction where we get the maximum efficiency. So the power factor where we get the maximum efficiency cos phi at the fraction value of x, where we get at under root P core by P copper. ठीक है, so आपको पता है इक्वेशन 1 से आपको P core is equals to P copper मिल रहा है, that means these two will get cancel and you are going to get 1. So जो power factor मिलने वाला है that is nothing but 1 only. ठीक है, so unity power factor. So the transformer maximum efficiency for a constant load current occurs at unity power factor. So जो correct answer है for this given question is option number D. So option number D is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now moving towards next question. Next question is the voltage regulation of a transformer depends on its dash. So we have been given certain statements and out of that we have to find out which is the correct statement. ठीक है, so the statement first is equivalent reactance, equivalent resistance, load power factor, transformer size, load current. So these are the statements and from this the correct answer is dash. ठीक है, so we have certain information regarding the voltage regulation of transformer. So चलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, so this is the voltage regulation information. We have to study one by one. ठीक है, so voltage regulation क्या होता है? Voltage regulation is nothing but the change in the secondary terminal voltage from no load to the full load value. ठीक है, आपको पता है that there are two different टर्मिनल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सो जो सेकेंडरी टर्मिनल का वोल्टेज होता है ट्रांसफॉर्मर का फ्रॉम नो लोड टू द फुल लोड, दिस इज नथिंग बट द चेंज इन द वोल्टेज. सो हमें वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना है. सो वोल्टेज रेगुलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी हैव टू टेक फर्स्ट द चेंज ऑफ secondary terminal voltage from no load to full load and we have to divide the term by either no load voltage or full load voltage depending on
what kind of voltage regulation we required. अगर हमें डाउन वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए होगा then we have to take the reference value as no load. बट अगर हमें अप वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए then we have to take voltage of full load only. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. So if I assume certain values for no load voltage and full load voltage, so I am just going to write here voltage at no load. So कितना हम वोल्टेज कंसिडर करेंगे? इट इज 50 वोल्ट. ये बस अजम्पशन है हमारा. ठीक है, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी टर्मिनल बट फुल लोड इज इक्वल्स टू 40 वोल्ट्स. ठीक है, सो हमें वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना है. वोल्टेज रेगुलेशन में भी दो टाइप्स आते हैं, एक तो डाउन वोल्टेज रेगुलेशन और दूसरा है अप वोल्टेज रेगुलेशन. सो हम सबसे पहले तो डाउन वोल्टेज रेगुलेशन को कंसिडर करेंगे एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डाउन वोल्टेज रेगुलेशन एंड लेटर ऑन वी कैन गो फॉर अप वोल्टेज रेगुलेशन. ठीक है, सो डाउन वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? डाउन वोल्टेज रेगुलेशन इज नथिंग बट नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, और जो रेफरेंस वैल्यू लेंगे हम डिनोमिनेटर में इट शुड बी नो लोड ओनली. क्यों नो लोड? बिकॉज डाउन वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना. सो डाउन वोल्टेज रेगुलेशन हमें कब मिलेगा? व्हेन द डिनोमिनेटर इज मोर. सो डिनोमिनेटर मोर कब मिलेगा हमें? व्हेन देयर इज नो लोड वोल्टेज. ठीक है, सो वी हैव टू राइट चेंज इन द न्यूमरेटर. सो चेंज फ्रॉम नो लोड टू द फुल लोड. 50 माइनस 40 और डिवाइड में क्या आने वाला है? इट इज नथिंग बट 50 ओनली. ठीक है, आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है. सो मल्टीप्लाई विथ 100 एंड यू आर गोइंग टू गेट 20% ऑफ डाउन वोल्टेज रेगुलेशन. ठीक है, बट अगर हमें अप वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना है, सो वोल्टेज रेगुलेशन अप. सो अप वोल्टेज रेगुलेशन आपको कब मिलेगा? व्हेन यू आर टेकिंग द लेस वोल्टेज एट द डिनोमिनेटर. ठीक है, अगर वोल्टेज कम होगा डिनोमिनेटर का देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द अप वोल्टेज रेगुलेशन. बिकॉज न्यूमरेटर तो दोनों के लिए भी सेम है, डाउन वोल्टेज रेगुलेशन हो या फिर अप वोल्टेज रेगुलेशन हो, चेंज फ्रॉम नो लोड टू द फुल लोड इज सेम ओनली. सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 50 माइनस 40, बट डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? डिनोमिनेटर में लेस वैल्यू आना चाहिए ताकि आपको अप वोल्टेज रेगुलेशन मिल सके. सो यू आर गोइंग टू गेट 100 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू आर गोइंग टू गेट 25%. सो आप देख सकते हो दैट डाउन वोल्टेज रेगुलेशन हमें 20% मिला बट अप वोल्टेज रेगुलेशन हमें 25% मिला. सो ये कैसे हुआ? बाय कंसिडरिंग द डिफरेंट रेफरेंस वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज. एक तो आप नो लोड लीजिए या फिर आप फुल लोड लीजिए डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन यू रिक्वायर्ड. ठीक है, वी हैव वोल्टेज ड्रॉप एट specific power factor load. This is the formula for that. Voltage drop अगर find out करना है at specific power factor load then you can go for this formula. ठीक है, उसके बाद में we have voltage regulation. So voltage regulation क्या होना चाहिए? voltage drop जो change था from no load to the full load. So this is nothing but equation हमारा first. So इस equation को आपको reference value से डिवाइड करना पड़ेगा और जो रेफरेंस वैल्यू आप कंसिडर करोगे इट इज नथिंग बट नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज ओनली. ठीक है, सो इससे आप अगर डिवाइड करोगे नो लोड वोल्टेज से तो आपको वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा. ठीक है, और ये जो वोल्टेज रेगुलेशन होने वाला है इट विल बी इन एक्चुअल वैल्यू. ठीक है, ये पर यूनिट वैल्यू में नहीं रहने वाला है, इट विल बी इन द एक्चुअल वैल्यू. ठीक है, यहाँ प्लस है एंड माइनस. सो प्लस इज फॉर लैगिंग पावर फैक्टर एंड माइनस इज फॉर लीडिंग पावर फैक्टर. ठीक है, नाउ द परसेंटेज फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है, सो परसेंटेज फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन कैसे मिलेगा? यू हैव टू राइट पर यूनिट आर कॉस फाई टू प्लस और माइनस पर यूनिट एक्स साइन फाई टू. दैट मीन्स परसेंटेज आर कॉस फाई टू प्लस और माइनस परसेंटेज एक्स फाई टू. ठीक है, इससे आप फाइंड आउट कर सकोगे परसेंटेज फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन. ठीक है, एंड लास्ट वन वी हैव हियर इज अगर आपको किसी फ्रैक्शन पे फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, द रेगुलेशन एट एनी फ्रैक्शन लोड एक्स, देन हाउ यू कैन बी एबल टू फाइंड आउट? यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद द फ्रैक्शन वैल्यू. ठीक है, अगर आपको 80% ऑफ लोड दिया गया है दैट मीन्स यू कैन गो फॉर 0.8 इंटू द ब्रैकेट टर्म. ठीक है, अगर 70% ऑफ लोड दिया गया होगा देन यू कैन गो फॉर 0.7 ऑफ डैश. ठीक है, सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा.
नाउ मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ठीक है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर टू इक्वेशन सो दैट यू कैन बी एबल टू फाइंड कि कौन कौन से पैरामीटर्स पे वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड करेंगे, ठीक है. सो वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू परसेंटेज आर कॉस फाई टू प्लस और माइनस परसेंटेज एक्स साइन फाई टू, ठीक है. कंसिडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1. And again we have formula for voltage regulation. This will be in the percentage form and here I am writing in the actual value, ठीक है. So what we are going to get, IR R cos phi 2 plus or minus x sin phi 2, और जो रेफरेंस वैल्यू हमें कंसिडर करना होगा दैट इज गोइंग टू बी द नो लोड वोल्टेज, ठीक है. सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर VR, दिस इज गोइंग टू बी द नो लोड वोल्टेज, ठीक है. इट इज इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में से आप देखिए कि कौन कौन से पैरामीटर्स पे वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड कर रहा है, ठीक है. सो वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड्स ऑन इक्विवेलेंट रिएक्टेंस. कैसे इक्विवेलेंट रिएक्टेंस पे डिपेंड करेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 यू कैन सी दैट वी हैव इक्विवेलेंट रिएक्टेंस वैल्यू, ठीक है. एक्स एक्स दिया गया, दैट मीन्स वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड्स ऑन इक्विवेलेंट रिएक्टेंस. वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड्स ऑन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज वेल बिकॉज आर का भी वैल्यू दिया गया है, ठीक है. लोड पावर फैक्टर, सो यस लोड पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करता है. हियर यू कैन सी cos phi 2, ठीक है. cos phi 2 से आप phi 2 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए एंड यू कैन बी एबल टू गेट द sin phi 2 वैल्यू एज वेल, ठीक है. क्या ट्रांसफॉर्मर साइज पे डिपेंड करता है वोल्टेज रेगुलेशन? सो नो, केवीए रेटिंग का कोई भी यूज नहीं है इस वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूलाज में. सो ट्रांसफॉर्मर साइज पे डिपेंड नहीं करेगा वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है. एंड लास्ट वन इज लोड करंट पे डिपेंड करता है क्या? सो यस इट डिपेंड्स ऑन लोड करंट एज वेल बिकॉज इन सेकेंड इक्वेशन यू कैन सी IR, ठीक है. IR इज नथिंग बट द लोड करंट वैल्यू. सो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? इट इज 1, 2, 3 and 5. So it is an option number A. So option number A is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. Now moving towards our next question. So the question is the voltage regulation of a transformer is given by dash. So we have been given certain equations. So equations के through हमें find out करना है कि कौन सा voltage regulation का formula होने वाला है. सो एज यू ऑल नो कि वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज रेगुलेशन इज नथिंग बट द चेंज इन द टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू द फुल लोड. सो आई जस्ट राइट हियर दैट V नो लोड माइनस V फुल लोड. और रेफरेंस में कौन सा वैल्यू लेना चाहिए? अगर आपको डाउन वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए देन यू शुड टेक V नो लोड, बट अगर आपको अप वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए देन यू हैव टू टेक V फुल लोड एट डिनोमिनेटर, ठीक है. बट फॉर ट्रांसफॉर्मर यू हैव टू कंसिडर ऑलवेज डाउन वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है. अगर आपको अप वोल्टेज रेगुलेशन दिया गया है देन ओनली यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ V फुल लोड एट द डिनोमिनेटर. बट अगर आपको कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया है देन यू हैव टू कंसिडर ओनली डाउन वोल्टेज रेगुलेशन फॉर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है. मोस्टली ट्रांसफॉर्मर में डाउन वोल्टेज रेगुलेशन होता है और जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं वहां अप वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ठीक है. सो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आने वाला इट इज गोइंग टू बी V नो लोड, ठीक है. V नो लोड. सो V नो लोड को ऑप्शंस में E2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है एंड V फुल लोड को V2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है. सो आई जस्ट राइट हियर दैट वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाय E2, ठीक है. सो कौन से ऑप्शन में आपको ये मिल रहा है? सो इट इज इन ऑप्शन नंबर B. सो ऑप्शन नंबर B इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि अप वोल्टेज रेगुलेशन और डाउन वोल्टेज रेगुलेशन कब हमें कंसिडर करना चाहिए. सो मोस्टली इन द केस ऑफ ट्रांसफॉर्मर यू शुड कंसिडर ओनली डाउन वोल्टेज रेगुलेशन, यू शुड कंसिडर ओनली डाउन वोल्टेज रेगुलेशन. और अगर ट्रांसमिशन लाइन होगा देन यू कैन गो फॉर अप वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन.
So our next question is, a single phase transformer has per unit leakage impedance of 0.02 plus 0.04 J. Its regulation at power factor 0.8 lagging and 0.8 leading are respectively dash. So we have been given certain values in the form of percentage. ठीक है, so आपको क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज रेगुलेशन बट इन द परसेंटेज फॉर्म. ठीक है, और दो वोल्टेज रेगुलेशन आपको फाइंड आउट करने हैं, एक तो 0.8 लैगिंग के लिए और दूसरा 0.8 लीडिंग के लिए. ठीक है, सो ये दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं. So we have one formula in order to find out the voltage regulation but in the percentage form. So कौन सा formula है? So it is nothing but percentage voltage regulation is equals to percentage R cos phi plus or minus percentage X sin phi. ठीक है, so this is the formula. इस formula के help से आप परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, सो हमें इक्वेशन में क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा? वी नीड टू सब्स्टिट्यूट आर वैल्यू, कॉस फाई वैल्यू, एक्स वैल्यू एंड साइन फाई वैल्यू. ठीक है, सो क्या हमारे पास इतने टर्म्स दिए गए हैं? सो वी हैव बीन गिवन आर का वैल्यू. सो आर का वैल्यू कितना दिया गया है? आर इज इक्वल्स टू 0.02 और ये परसेंटेज वैल्यू दिया गया है. ठीक है, पर यूनिट में दिया गया है. ऑल्सो वी हैव बीन गिवन परसेंटेज एक्स वैल्यू. सो एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है? इट इज नथिंग बट 0.04 J. ठीक है, एंड वी हैव बीन गिवन द पावर फैक्टर. सो कॉस फाई का वैल्यू 0.8 दिया गया है. ठीक है, कॉस फाई इज इक्वल्स टू 0.8 बट इट इज लैगिंग. ठीक है, एंड ऑल्सो वी हैव बीन गिवन कॉस फाई 0.8 बट इट इज लीडिंग. सो सबसे पहले हम cos phi 0.8 लैगिंग के लिए फाइंड आउट करेंगे एंड लेटर ऑन वी कैन गो फॉर 0.8 लीडिंग. ठीक है, सो ये जो प्लस और माइनस आप देख सकते हो, प्लस इज फॉर लैगिंग एंड दिस माइनस इज फॉर लीडिंग. ठीक है, प्लस इज फॉर लैगिंग एंड माइनस इज फॉर लीडिंग. सो सबसे पहले तो आप पहले लैगिंग के लिए फाइंड आउट कीजिए. सो लैगिंग के लिए आप कैसे फाइंड आउट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट फॉर्मूला परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन फॉर लैगिंग. ठीक है, हम लैगिंग के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं. सो परसेंटेज आर कॉस फाई प्लस परसेंटेज एक्स साइन फाई. ठीक है, आप एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. सो इट इज नथिंग बट परसेंटेज आर का वैल्यू दिया गया है 0.02, कॉस फाई का वैल्यू कितना दिया गया है? 0.8 प्लस परसेंटेज एक्स का वैल्यू दिया गया है 0.04 और साइन फाई का वैल्यू क्या आएगा? साइन फाई का वैल्यू 0.6 आने वाला है बिकॉज कॉस फाई इज इक्वल्स टू 0.8. सो कॉस इनवर्स 0.8 जब आप फाइंड आउट करोगे देन यू आर गोइंग टू गेट वन एंगल एंड दैट एंगल यू नीड टू सब्स्टिट्यूट हियर. और वो एंगल सब्स्टिट्यूट करने के बाद में आपको साइन फाई का वैल्यू 0.6 मिल जाएगा. ठीक है, now you have to solve this and after solving what you are going to get? You are going to get 0.04. ठीक है, आपको 0.04 मिलेगा. That means in the percentage form you are going to get 4%. ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन कितना मिलने वाला है आपको? वोल्टेज रेगुलेशन आपको मिलेगा 4%. ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. Now you have to find out the voltage regulation for leading. So second one, I'll just write here percentage voltage regulation is equals to percentage R cos phi minus Q because we have to find out for leading. So leading के लिए यहाँ माइनस आने वाला है. ठीक है, percentage X sin phi. ठीक है, now you have to substitute all the values जितने भी values दिए गए हैं. So I'll just write here 0.02, 0.8 minus 0.04 into 0.6. So this is the value. When you will solve this, you are going to get the result as minus 0.008. ठीक है, और अगर आपने इसे परसेंटेज फॉर्म में कर दिया देन यू आर गोइंग टू गेट minus 0.8%.
ठीक है. सो दिस इज द वोल्टेज रेगुलेशन फॉर लीडिंग एंड दिस इज द वोल्टेज रेगुलेशन फॉर लैगिंग. क्यों यहाँ माइनस आया? बिकॉज अगर लीडिंग वोल्टेज रेगुलेशन हमें फाइंड आउट करना है देन वी कैन गेट 3 डिफरेंट वैल्यूज. एक तो आपको पॉजिटिव टर्म मिलेगा लीडिंग साइड में, या फिर आपको निगेटिव टर्म मिलेगा, या फिर आपको जीरो वैल्यू भी मिल सकता है इन केस ऑफ लीडिंग वोल्टेज रेगुलेशन. But in case of lagging voltage regulation, you are going to get always positive voltage regulation. ठीक है. लैगिंग के केस में हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, बट लीडिंग के केस में आपको 3 डिफरेंट वैल्यूज मिल सकते हैं. एक तो आपको निगेटिव वैल्यू मिल सकता है, या फिर पॉजिटिव वैल्यू मिल सकता है, या फिर जीरो भी वैल्यू मिल सकता है. ठीक है. वोल्टेज रेगुलेशन का हम ग्राफ देखेंगे एक दो क्वेश्चंस के बाद, ताकि आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाए. ठीक है. सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज 4% and minus 0.8. So it is in option number B. So option number B is only correct answer for this. Now moving towards our next question. So our next question is, in a transformer, ZE is equals to RE2 plus JXE2. So this is the value of equivalent leakage impedance. Its maximum voltage regulation is equals to dash. So in this question what we have to find out? We have to find out the maximum voltage regulation. कौन से पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिल रहा है, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द पावर फैक्टर वैल्यू एट विच वी गेट द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन. ठीक है. सो एज यू ऑल नो कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन हमें कौन से पावर फैक्टर पे मिलता है? क्या लीडिंग साइड में मिलता है या फिर लैगिंग साइड में मिलता है? सो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन ऑलवेज वी गेट एट लैगिंग पावर फैक्टर. Always we get at lagging power factor. और मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन हमें ऑलवेज लीडिंग साइड पे मिलता है. ठीक है. लीडिंग साइड. सो कीप इन माइंड कि अगर आपको पूछा गया कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कौन से पावर फैक्टर पे ऑकर करता है, सो इट मस्ट बी एट द लैगिंग साइड. और अगर आपको पूछा गया है कि मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कहाँ ऑकर करता है, सो इट शुड बी एट द लीडिंग साइड. ठीक है. So we have certain information regarding the voltage regulation. हम ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन का कंडीशन. ठीक है. So we have been given here 2 different conditions. So condition 1 is nothing but condition for maximum voltage regulation, and also we have condition for zero voltage regulation. So आपको maximum voltage regulation का condition कब मिलेगा? अगर इम्पिडेंस ट्रायंगल RL लोड के लिए सिमिलर हो जाए एज दैट ऑफ इम्पिडेंस ट्रायंगल फॉर ट्रांसफॉर्मर. ठीक है. अगर RL लोड का इम्पिडेंस डायग्राम ट्रांसफॉर्मर के इम्पिडेंस डायग्राम के इक्वल हो जाए, सिमिलर हो जाए, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर. अगर मैं यहाँ इम्पिडेंस डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, सो दिस इज नथिंग बट द इम्पिडेंस ट्रायंगल. So this is going to be phi 2. If phi 2 is equals to theta, and this is hypotenuse value is nothing but Z02. नीचे का वैल्यू हो जाएगा R02 and this is going to be X02. ठीक है. सो अगर इम्पिडेंस ट्रायंगल ऑफ RL लोड बिकम सिमिलर, अगर सिमिलर हो जाए एज दैट ऑफ द इम्पिडेंस ट्रायंगल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, then we are going to get the maximum voltage regulation of transformer. ठीक है. सो अगर आपको tan phi 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो tan phi 2 का वैल्यू क्या आएगा? इट इज नथिंग बट अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड. सो अपोजिट साइड कौन सा है? अपोजिट साइड इज नथिंग बट X02. ठीक है. अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड. सो यू कैन सी दैट वी हैव रेशियो ऑफ X02 बाय R02. दिस इज नथिंग बट आर tan phi 2 वैल्यू. अगर आपको पावर फैक्टर cos phi 2 फाइंड आउट करना है, तो पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होता है? इट इज नथिंग बट एडजेसेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनियस वैल्यू. ठीक है. सो R02 बाय Z02 आपको रिजल्ट मिल जाएगा. ठीक है. नाउ विल मूव टूवर्ड्स द कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन. सो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आपको लीडिंग पावर फैक्टर पे मिलेगा. ठीक है. नाउ यू हैव टू कंसिडर द RC लोड. मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हमने RL लोड को कंपेयर किया था ट्रांसफॉर्मर के इम्पिडेंस ट्रायंगल के साथ, बट नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द RC लोड. ठीक है. सो नाउ आई विल ड्रॉ द इम्पिडेंस ट्रायंगल
सो दिस इज गोइंग टू बी द इम्पिडेंस ट्राइंगल. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी थीटा वैल्यू. सो क्या यहाँ अभी थीटा इज इक्वल्स टू फाई टू आने वाला है? नो, देयर इज गोइंग टू बी द चेंज. नाउ द लोड फेज एंगल इज गोइंग टू बी थीटा और यहाँ आपको फाई टू मिलेगा. हियर यू आर गोइंग टू गेट फाई टू वैल्यू. ठीक है, नाउ दिस इज गोइंग टू बी R02, दिस इज गोइंग टू बी X02 एंड दिस इज गोइंग टू बी Z02. ठीक है, सो बोथ द एंगल, अगर दोनों का जब आप एडिशन करोगे देन यू आर गोइंग टू गेट द 90 डिग्री वैल्यू. ठीक है, सो दिस इज फॉर RC लोड. ठीक है, दिस इज फॉर RC लोड एंड दिस इज फॉर RL लोड. ठीक है, RL लोड के XC by RL should be equals to R02 by X02. ठीक है, now if you have to find out the tan phi 2 value, so tan phi 2 value आप इस impedance triangle से find out कर सकते हो. you have to consider this angle phi 2. ठीक है, so tan का वैल्यू क्या आता है? tan का वैल्यू is nothing but opposite side by adjacent side. ठीक है, so opposite side by adjacent side क्या आने वाला है? so R02 by X02. so you can see that ratio of R02 and X02. now for power factor, so leading power factor क्या वैल्यू आने वाला है? it is nothing but adjacent side. so this is the adjacent side X02 by hypotenuse Z02. so you can see the power factor value for zero voltage regulation. ठीक है, so from this we can be able to get कि maximum voltage regulation कहाँ occur हो रहा है? so it is occurring at percentage Z, this is for lagging. minimum voltage regulation कहाँ occur हो रहा है? so it is at minus percentage X at leading side. और अगर आपको regulation at unity power factor find out करना है then the value is going to be percentage R. ठीक है, ये तीन values important है, आप इसे ध्यान में रखिए. and here you can see one graph of voltage regulation. so maximum voltage regulation आपको कहाँ मिल रहा है? so it is at lagging side. so you are getting the maximum voltage regulation somewhere here. ठीक है, और minimum voltage regulation आपको कहाँ मिल रहा है? so minimum voltage regulation आपको leading side में मिल रहा है, so somewhere here. ठीक है, minimum. and there is one more point to be noted that lagging side में आपको पूरे के पूरे positive values मिल रहे हैं. ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन का आपको पूरा का पूरा पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है. बट इन केस ऑफ लीडिंग, सो लीडिंग के केस में आपको क्या क्या मिल रहा है? सो यू आर गेटिंग द पॉजिटिव वैल्यू यहाँ तक, यू आर गेटिंग जीरो वैल्यू हियर एंड यू आर गेटिंग निगेटिव वैल्यू हियर. दैट मीन्स यू आर गेटिंग पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो एज वेल. ठीक है, सो तीन वैल्यूज आपको लीडिंग साइड में मिल रहा है और एक ही पॉजिटिव वैल्यू आपको लैगिंग साइड में मिल रहा है. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जितना भी हमने वोल्टेज रेगुलेशन के कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन किया. नाउ मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन कि हमें पूछा गया था कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू व्हाट. सो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन तो लैगिंग साइड में मिल रहा है बट द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल्स टू द परसेंटेज Z वैल्यू. सो यहाँ हमें परसेंटेज फॉर्म में अगर पूछा गया देन इट इज गोइंग टू बी परसेंटेज Z ओनली. ठीक है, सो आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है? सो इट इज एन ऑप्शन नंबर C एंड D. बट एज यू ऑल नो कि हमें मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कहाँ मिलता है? सो इट इज एट लैगिंग साइड, सो इट मस्ट बी ऑप्शन नंबर D. सो ऑप्शन नंबर D इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू वोल्टेज रेगुलेशन बट यहाँ हमें जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पूछा गया. ठीक है, सो द क्वेश्चन इज इन अ ट्रांसफॉर्मर ZE is equals to RE plus JXE. So this is the value of equivalent leakage impedance. Its zero voltage regulation for this transformer occurs at a power factor of dash. So हमें क्या find out करना है? We have to find out the power factor value at which we get the zero voltage regulation. So zero voltage regulation हमें कहाँ मिलता है? So zero voltage regulation हमें leading side में मिलता है. ठीक है, सो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए हमें जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है. सो हमें पता तो चल गया है कि लीडिंग साइड पे ही हमें जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा बट एट व्हाट पावर फैक्टर वी आर गेटिंग जीरो वोल्टेज रेगुलेशन वी नीड टू स्टडी दैट. ठीक है, हमने अभी ये पूरा का पूरा चार्ट डिस्कस किया था
एंड वी नो कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कंडीशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया. सो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के कंडीशन में आप पावर फैक्टर देखिए कि पावर फैक्टर कौन सा है. सो पावर फैक्टर इज नथिंग बट दिस वैल्यू. So cos phi 2 is equals to x02 by z02. This is nothing but the leading power factor at which we are getting the zero voltage regulation. So I'll just write here the formula. So what we are getting here? We are getting cos phi 2 is equals to, क्या result मिला आपको cos phi 2 का? So it is nothing but x02 divided by z02. That means as per the question यहाँ e दिया गया है. So I'll just write here cos phi 2 is equals to xe by ze but at leading side. So this is going to be our correct answer for this. So आपको ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? So it is in option number xe and z. So it is in option number C. So option number C is only correct answer for this. So I hope आपको जितने भी क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में लिए हैं वो सारे के सारे समझ में आए होंगे. एंड up to now we have completed total of 30 questions. So ट्रांसफॉर्मर का टॉप 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे. So out of 50 we have completed 30 questions और 20 क्वेश्चंस बाकी हैं. So I am going to try to do that as soon as possible. And अगर आपको कोई क्वेरी होंगी so you can ask me through the comment. And do like, share, comment and subscribe to my channel. So if you are visiting my channel for the first time, so I request you to please subscribe it and don't forget to hit the bell icon for further notification. And there is one Telegram group as well, so you can join that. I'll provide the link in the comment section. So मिलते हैं next video में. So thank you guys.